Okay, I'm sharing the screen now. Hello. हेलो यस सर. नहीं, शुरू कर देती हूँ सर मैं. यस यस. ओके ओके. गुड आफ्टरनून टू ऑल. I hope the screen is visible. I am sharing the screen now. I hope it is visible. Can someone just ping me on chat, in chat box, if the PPT was visible? Yes yes. Okay, so I'm starting with the presentation. Yes yes yes. Okay, fine. So, very good afternoon to everybody who has joined today live for this session. Today, we are going to talk about few case studies in Sri Rog and Prasuti Tantra. Now, why we have taken this topic? Because we want to highlight the treatment protocols of Ayurveda gynecology, especially, and by which we can get success in many. I will say surgical cases also, or some benign cases also, which can be treated, and not only few local conditions like infection or abnormal vaginal discharge, but other conditions of Arthava Srotas, or you can say uterus, uh, that can be treated also, like adenomyosis and fibroids, and even cervical erosions, and even infertility. So we are going to study few cases, and along with that, not only my case studies, but I have just a few, two or three. I have taken another cases, just to again I am want to highlight that we have to go through the researches which are being undergone going in the present time. जो publications होते हैं वो हमें जो है वो देखते रहने हैं. Fine. So we proceed with that. Whatever research publications are there related with the successful case studies of Ayurveda gynecology, please frequently go through them. That will help you a lot in your practice. And again, I am saying this in each of my classes or sessions, that will keep you updated. Okay, that what other treatment modalities are happening, or what we can do in such cases. Sometimes what happens, we are not हमारे हम जो करते आ रहे हैं वो कर रहे हैं. In some cases we get success, in some cases we don't. Okay, I also have so many unsuccessful case studies. वो हम इनफर्टिलिटी का जब आएगा सेशन तब उसमें बात करेंगे कि ऐसा नहीं होता कि सभी में सक्सेस मिलता है. Okay, so that is why again I am highlighting. So, what is it? This session is especially for highlighting the role of स्थानिक चिकित्सा also. Okay, कि स्थानिक चिकित्सा कितना हमें हेल्पफुल होता है इन ट्रीटिंग आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस. तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक कोर्स हो चुका है हमारा एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का, एंड वी हैव सीन दैट हाउ मच इट कैन बी हेल्पफुल इन नॉट ओनली द ट्रीटिंग द कंडीशन बट ऑल्सो इरिवर्सिबल, कि वो वापस ना हो पेशेंट को. Okay, so that is in that way also it is helpful. Even in the patients of erosion, cervical erosion and cervicitis, वो भी हमने लास्ट टाइम भी फ्री जो था सेशन उसमें भी हमने देखा, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस वाले सेशन में भी देखा कि इट इज सो मच हेल्पफुल in treating that condition, and that too without recurrence. Okay, cervicitis also, then PID, pelvic inflammatory disease. We know that antibiotics again damages the flora, vaginal flora, and again the patient may suffer from irreversible damage to the fallopian tubes, which may again lead to infertility. तो उसमें आयुर्वेद की ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमने देखी है. Infertility can be treated not only by the this चिकित्सा of अभ्यंग, this योनि धावन पीछू, लेकिन साथ में उत्तर बस्ती, which is a very good treatment in the patients of infertility. Sometimes even in my patients मुझे लगता है कि ये patient में होगा कि नहीं, there is so much difficulty, कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, देन बट ऑल्सो वी फाइंड के नहीं, उत्तर बस्ती से वी हैव टू ट्रस्ट एंड वी हैव टू हैव फेथ इन द ट्रीटमेंट. Many cases do succeed in such patients. Even adenomyosis and fibroids,
अलॉन्ग विद द पंचकर्म, क्योंकि आयुर्वेद में भी बोला है कि सर्वव्यापन योनिम तो कर्म भी वमनादि भी, एंड देन दे आर सेइंग सर्वतः सुविशुद्धाया शेषम कर्म विधीयते। तो पंचकर्म करने के बाद में जो भी उस पेशेंट से रिलेटेड है, जैसे एडिनोमायोसिस फाइब्रोइड जो है, उसका ओरिजिन अगर आप मॉडर्न साइंस में भी देखें, कंटेम्पररी साइंस में, सो दे से कि द ओरिजिन ऑफ एडिनोमायोसिस एंड फाइब्रोइड इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन। उसकी शुरुआत जो है वो शोथ से होती है, वो शोथ समुद्भव है। तो इन्फ्लेमेशन जो है, हम जानते हैं कि आयुर्वेद में अगर हमें उसे ट्रीट करना है तो शोधन में हमें विरेचन करना पड़ेगा, और विरेचन के बाद में हम दूसरी चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं, शेषम कर्म विधीयते। तो दैट इज वाई नॉट ओनली स्थानिक बट बिफोर दैट, क्योंकि सिद्धांत में ही बताया है कि पहले वो करो, फिर बाद में स्थानिक चिकित्सा। इवन पीसीओएस पेशेंट्स वी हैव सीन के शमन चिकित्सा बिल्कुल भी बहुत सारे पेशेंट्स में जो है वो काम नहीं करती है। यस, इन सम पेशेंट्स दे वर्क miraculously, only few medications if we give the patient will have benefits, but in some especially obese PCOD patients, okay, those who are having so much insulin resistance, for them shodhan as well as other treatments are necessary। एंड इन जेनेटल प्रोलेप्स के जिसमें सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत होती है, जो प्रोसीजर्स है कोल्पोराफी, पेरिन्यूराफी एंड इवन आइदर हिस्टेक्टोमी और मैनचेस्टर, ये सारे सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत है। इन सच केसेस ऑल्सो वी फाइंड दैट अवर स्थानिक चिकित्सा इज़ वेरी मच यूजफुल। तो ये सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे ये योनि धूपन है, ये योनि धावन है, देन अग्निकर्म चिकित्सा है। आप देख सकते हो कि ये वर्ती है, उससे धूपन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सारे द्रव्य जो है वो अच्छे धूपन कर्म भी करते हैं। दिस इज द photograph of Uttar Basti. This is of Sharkarma. This is, you can say, Pichu or Potli. So we have a wide variety of options, major options, and we can do the treatment according to the patient's condition. बार बार हम वही बात करते हैं कि आतुर बल, व्याधि बल, दोष बल, है ना, स्थान, ये सब देख के जो है हमें ट्रीटमेंट हमारा डिसाइड करना है। तो कुछ केसेस, ये बहुत रीसेंट केस है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ, वेरी रीसेंट पेशेंट, 2 years इनफर्टिलिटी था, एज उनकी थोड़ी 33 थी, सो दे वर वेरी मच कंसर्न। ओके, ईचिंग का भी पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, समटाइम्स प्री मेंस्ट्रुएशन। ओके, so this was continued, and there was painful menstruation also. Cervix was very deep seated, and on examination even there was vaginitis and vulvitis, and you can see here almost the reports were normal. A small endometrial polyp was there, which we can say that it is insignificant, इतना नहीं है। Patent fallopian tubes थी, okay, TSH normal, AMH is good 2.0, prolactin is normal, the husband's count little bit less, and motility was little bit okay. So these were the treatment being given. एक बार जब सोनोग्राफी कराया तो उसमें थोड़ा यूट्रस माइल्ड बल्की आया था, अदरवाइज शी वाज ओके। सो व्हाट वी डिड ऑल द प्रोसीजर्स, वी डिड विरेचन, इनमें विरेचन भी हुआ था, बीच में कुछ वो गायब है केसेस, केस पेपर्स। विरेचन हुआ, फिर उनका बस्ती हुआ, देन उत्तर बस्ती, एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम योनि धूपन और ये धावन चालू था, क्योंकि ईचिंग का कंप्लेन जो या डिस्चार्ज का प्रॉब्लम उनको रहता था, प्री मेंस्ट्रुअल ईचिंग, बट स्टिल शी कंसीव्ड इन द मार्च। ओके, मार्च में जो है उनका कंसेप्शन हो गया है, एंड राइट नाउ शी केम टू मी वेरी रिसेंट, यू कैन सी 30th April, and the gestational sac was seen and fetal heart rate is also seen. The patients were anxious and they thought, मैंने IUI का बहुत बार बोला, because cervix was very deep seated, you can see here follicular study and IUI in the next cycle. The patient suggested that maybe we want to again try naturally. If not, then we will go for IUI, because age is there, age factor is there, 33, and I was concerned that later on नहीं complications होने चाहिए. So you can see here that, but again I am telling you, शोधन जो है वो करके फिर बाद में, you can see here शतपुष्पा तेल उत्तर बसे, and that too I did for 5 days. Okay, we will see in the course of this Sthanic Chikitsa, especially Uttar Basti, that for how many days, how much time, and all these things we will have to take into consideration different things कि वो protocol जो है वो decide करने के लिए कब करना है। Similarly, you can see here
She was a doctor herself, and she suffered from bilateral fimbrial end block, and she had also undergone intra in vitro fertilization. ओके, वो भी उन्होंने किया, जो है वो आई थिंक 3-4 times he had undergone for that, and there was no success. And she came to us last week, नहीं मैम, you can do whatever you want, I am ready to do. And I said fimbrial end block, even contemporary people, they will also say that it is very difficult to open the fimbrial end. If it is cornual, it is very easy to open, but if it is fimbrial, it is difficult. So yet we did, and she was very happy, and I was very happy that oh, yes, the tubes open, both the tubes open. I was not sure, मैंने उनको पहले ही बोला कि भाई एक ट्यूब ओपन करने की, एक भी हो जाए तो नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है. But surprisingly both the fallopian tubes opened, and again same protocol we did in this patient also, Virechan, Basti, and then Uttar Basti. And I want to say that Uttar Basti we did with Apamark Shartel with Shatpushpa. We mixed both the oils and we did that, and later on with Falagrut. And I was surprised she conceived naturally, and she's having a good baby girl daughter. Baby, she's now about I think 3-4 years. So even fimbrial blockage also we can treat with Uttar Basti. Yes, this is one of the patient which we got very quick result, you can say. Okay, she was having infertility since many time. The age was less 26 only, but again anxiety was there कि मैडम 2-3 साल हो गए शादी के, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है. We have been trying, and then they came to us, and I said she had done every treatment from outside. I said let me see, if everything is failing, then we have to go for IUI. So once I did her follicular study, and when it was ruptured, then I suggested her IUI. So we did IUI, and the patient conceived with the IUI itself, first cycle only. And here I want to tell you that at our place we do IUI without sending the semen sample to the laboratory for semen wash. If the count and motility is good, then what we do is we collect the semen and directly we push it inside as soon as the rupture happens. Okay, within the next 24 hours after the rupture. Okay, so you can see that cardiac activity was that. She has also delivered child now. Okay, so this is very quick, you can say that. Sometimes क्या है कि ऐसे patients अगर आते हैं everything is normal, फिर भी नहीं होता है, तो वी हैव टू टेक क्विक एक्शन कि नहीं भाई सब कुछ कर चुके हैं ये लोग. शी हैड अंडरगॉन so many cycles of letrozole, so many cycles where she has taken injection HCG, and this particular you can see sonography report without letrozole, without HCG injections, naturally only by Pushpadhanva and our treatment, and then we did intrauterine insemination. Okay, सो ये स्थानिक में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी जो है वो क्विक रिजल्ट के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो. एंड IUI के लिए थोड़ा ये है कि पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है. ओके, बिकॉज वी हैव सीन सो मैनी मूवीज विच मिस गाइड, है ना, चेंज हो गया, ऐसे सब मूवीज आते हैं. सो पेशेंट्स आर वेरी रिलेक्टेंट, एज आई सेड इन द फर्स्ट केस इटसेल्फ. पेशेंट वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू गो फॉर IUI. वो बोले नहीं मैडम नेचुरली ट्राई करना. So patients are little bit, but if we explain them and everything, then वो मान जाएंगे and they will go for it. Okay. Yes, this is another case you can see here. Failure to conceive 5 years. Now this patient did not have PCOD. PCOD नहीं था लेकिन anovulatory cycles थी. Always she had anovulatory cycles. Whenever sonography report was done for ovulation study, उसमें हमेशा यही दिखाते थे कि anovulatory, ovulation नहीं होता, ovulation नहीं होता. So in this patient, you can see cycles were absolutely normal, no problem. AMH was good, FSH, everything normal, thyroid normal, patent tubes were there, everything was okay, uterus was also okay, but only thing was that no ovulation. So we did Virechan, Basti, Uttar Basti also. You can see Shatpushpa tel we used for 3 days. इसकी हमने 3 साइकिल की. ओके, इंट्रायूट्राइन उत्तर बस्ती विथ शतपुष्पा तेल
3 days for 3 cycles, and after 3 cycles also there was no result. ओके, देर वॉज एन ओवुलेशन, है ना। और यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर ने कि आवता महीना है, मतलब नेक्स्ट मंथ में फिर से आना है। देर वॉज नो चेंज। देन आई वॉज लाइक इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है, देन वॉट वी शुड डू नाउ। सो वॉट वी डिड वॉज, आई सेड के नाउ वी शुड गो फॉर नस्य। if everything fails, then what we did was नस्य। तो हमने उसको वी डिड वर्धमान मात्रा में शतपुष्पा तेल का नस्य किया। ओके, वर्धमान मात्रा मीन्स first day 2 drops in each nostril, then second day 3 drops. This is after menstruation. Then 4 drops, then 5 drops, then we came up to 7 drops. Okay, then उसको बोला कि we will see for ovulation study next day onwards, 10th day से देखिए आप। Okay, so I was also happy, thickness was good. Okay, and there was a development of follicle. Thickness पहले भी बनती थी, but here there was no development of follicle because here the developed follicle developed and ruptured. Okay, इसी वक्त हमने IUI भी किया। ओके, इन दिस साइकिल इटसेल्फ द पेशेंट कंसीव्ड, बट अनफॉर्चुनेटली उसको 3 मंथ जब होने वाला था, 2.5 month अराउंड, देर वॉज लॉस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड शी हैड टू गो फॉर DNC। लेकिन DNC के बाद 3 मंथ के बाद में उसको जब ट्राई करने को बोला था कि वी विल अगेन ट्राई, शी कंसीव्ड नेचुरली। Okay, now she is having a healthy baby boy around 3.5 kg, more than 3.5 kg से delivered. Okay, so when other options fails, we have to see for, क्योंकि अपिवंध्या च षंडी च सूयते शतपुष्पया। ओके, शतपुष्पा शतावरी कल्पाध्याय ऑफ काश्यप संहिता फलश्रुति ये बताई है, अपिवंध्या च षंडी च सूयते शतपुष्पया। जहाँ पे कुछ नहीं प्रो होता, यहाँ पे उत्तर बस्ती दिया था लेकिन नस्य से काम किया, वहां पे ये बताया है कि शतपुष्पा तेल का पान, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, हर एक चीज में जो है वो शतपुष्पा का यूज करने के लिए बताया है। कल्प स्थान में शतपुष्पा शतावरी कल्पाध्याय। ओके, नाउ सी दिस पेशेंट ऑल्सो, she came to us with the enlarged ovaries. Okay, PCOD diagnose कर दिया कि enlarged ovaries है, and also small fibroid, small तो नहीं बोल सकते, 3.5 centimeter around. Okay, नहीं, this is cervix. Fibroid was small as I said, and even PID भी बताया। तो व्हाट वी डिड अगेन, उसको विरेचन नहीं करना था बिकॉज स्नेहपान वगैरह, शी वॉज लाइक आई घी नहीं लेना, मुझे स्नेहपान नहीं करना। सो वी डिड अ सद्यो विरेचन एंड देन उसको बस्ती लिया था हमने, एंड योनि प्रक्षालन और ये सब तो चालू था पीछू। सो यू कैन सी हियर दैट everything was gone. Next report came absolutely normal, there was no problem. Okay, एंड जस्ट किडनी में जो है वो उस वक्त उसको स्टोन आए थे, स्मॉल स्टोन, बिकॉज फ्रीक्वेंटली शी वॉज हैविंग। उसके पहले भी उसको यही कंप्लेंट थी कि एवरी टाइम शी विल हैविंग कैलकुलस होगा चला जाएगा, बट ऑल अदर प्रॉब्लम्स यू कैन सी हियर, नो PID, no bulky cervix. Okay, and ovaries are normal, है ना, everything. And even if we same cycle follicular study was being done, and there was rupture of the follicle. Okay, so you can see here that within few months, and 2 months only, 20 October and 31st December, you can see here that if proper treatment is being given, then such patients also they will be treated successfully. Yes, this is a patient of adenomyosis. Okay, adenomyosis with severe manometorrhagia and dysmenorrhea, है ना। We know that adenomyosis patients will be like कितने पेन में रहते हैं वो, हैवी क्लॉट्स विल बी कमिंग, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आता है और पेनफुल। पेशेंट बोलती है कि मुझे इंजेक्शन ही ले, शी यूज टू कम फ्रॉम फार अवे, दूर से आती थी वो, एंड शी वॉज यंग अबाउट 36, 37, 38 ईयर्स एज, एंड शी डिडंट वांट टू गो फॉर हिस्टेक्टोमी। ओके, यहाँ पे दोनों जगह पे एज अलग अलग लिखी हुई है, यू कैन सी। बाकी पेशेंट वही है। व्हाट वी डिड वॉज, उसको हमने विरेचन दिया, बस्ती दिया, एंड इन दिस पेशेंट वी ट्राइड उत्तर बस्ती ऑल्सो, बट इन उत्तर बस्ती व्हाट हैपन वॉज,
कि सर्विक्स और यूट्रस बल्की होने की वजह से द ऑस रिमेंड वेरी मच क्लोज्ड। वी ट्राइड एवरीथिंग कि ऑस ओपन करने के लिए बस्ती दिया पहले, इवन बिफोर हाफ एन आवर एट्रोपिन ट्राई किया। आई ट्राई टू ओपन एवरी द सर्विक्स विद द हैगास डायलेटर वेरी, उसको पेन हो तब तक मैंने ट्राई करती रही, बट नहीं हुआ। तो पीचू दिया था हमने फिर, अगर कि उत्तर बस्ती नहीं हो रहा है तो हम, उसका बेस्ट ऑप्शन है कि उसको पीचू दे दो। तो यू कैन सी कि इतना ज़्यादा चेंज उसको इसमें नहीं हुआ है। पीआईडी वगैरह ऑफ कोर्स चला गया, कैलकुलस जो छोटा है वो तो वैसा ही है, बल्कि यूट्रस रहा। बट उसके जो सिम्टम्स थे एडिनोमायोसिस के, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, हैवी मेंस्ट्रुएशन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, अनबेरेबल पेन, ये सब जो है उसका वो चला गया था। सो मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जो पैथोलॉजी है एडिनोमायोसिस की बल्कीनेस है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद में एक या दो डिलीवरी हो तो यूट्रस की नॉर्मल साइज हमें कभी नहीं मिलती। वो 9 सेंटीमीटर अराउंड जो है वो मिलता ही है, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा मिलती ही है, एंड दे विल सजेस्ट इट इज़। बट लेकिन ये ऑल्टर टेक्सचर जो है, इको टेक्सचर जिसको वो लोग एडिनोमायोसिस बोलते हैं, वो भी रहेगा, लेकिन उसकी वजह से जो कंप्लेन होती है पेशेंट को, वो जो है सिम्टम्स जो है वो टोटली चले जाएंगे। सो एडिनोमायोसिस ऑल्सो वी नोट के मॉडर्न पीपल दे विल से कि भाई हिस्टेक्टोमी कर दो, इसको भी यही बताया गया था, गो फॉर हिस्टेक्टोमी अदरवाइज इट इज़ वेरी बल्की एंड इट वोंट बी ट्रीटेड। बट स्टिल द पेशेंट कंटिन्यूड, और अभी उसको मैंने बोला है कि एवरी 6 मंथ वी शुड गो फॉर वन कोर्स ऑफ बस्ती एंड पीचू। Okay, so this is this patient. This is also a recent case, I will say last year only. And you can see here, same thing, that there was bulky uterus, and adenomyosis was also there, fibroids were there, and you can see that she was having large hemorrhagic cysts also in both the ovaries. Okay, left ovary is enlarged and measures this much, left ovarian hemorrhagic cyst of about this much size. Okay, and right ovary again enlarged about 5 centimeter by 3 by 4, very large. Okay, and again because of the hemorrhagic cyst, multiple the usme small hemorrhagic, and the largest was very small. Okay, so this was it. शी वॉज ऑल्सो अ टीचर, एंड उसको बहुत समझाना पड़ा, पहले तो ओरली मेडिसिन चालू की। ऑफ कोर्स ब्लीडिंग वॉज अंडर कंट्रोल, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन विद पेन, एंड बिकॉज शी वॉज अ टीचर शी यूज्ड टू कंप्लेन, मैम मेरे कपड़े स्टेन हो जाते हैं, what should I do, there are heavy clots coming, and nothing helps during menstruation to save her from staining. She was very much distressed, and then she came. तो पहले ओरल चालू किया, एंड व्हेन शी वाज ओके कि नहीं अब हम कर सकते हैं, तो बाद में हमने थोड़ा ट्रीटमेंट भी उसका शुरू किया। सो दिस पेशेंट ऑल्सो अंडरवेंट धावन पीचू। ओके, उत्तर बस्ती इनमें नहीं किया था, धावन पीचू किया अप्पा मार्ग का, एंड बस्ती भी दिया था ये पेशेंट में। इन बस्ती ऑल्सो वी एडेड क्षार तेल along with Searcher. Okay, so you can see that totally there was no hemorrhagic cyst. She was very much surprised कि मैडम cyst hemorrhagic cyst चली गई। मैंने बोला नहीं दिखा रहा है इसमें तो, if there is a second page नहीं है, बट उसको नहीं थे hemorrhagic cyst बाद में, and absolutely the patient was okay. Her bleeding and everything was under control, pain was under control. And in this patient also I had told her that frequently जो है वो आप बस्ती जो है वो करवाते रहिए, and she is undergoing that, and right now she is having much better. She is much better, she is in touch and she is much better, and every 6 months she comes for the basti and pichu protocol. This is again a doctor, and she also suffered from the same thing. उसने भी सोनोग्राफी कराया, तो उसमें आप देखिए कि एनलार्ज्ड साइज राइट ओवरी with single cystic. Okay, it is about 4 by 3 by 3 centimeter, and they had queried a hemorrhagic cyst, and she was very much distressed because the size of the cyst is too much. ओवरी की साइज होती है 3 by 2 by 1, है ना, and you can see it is enlarged and the cyst has also enlarged, and she didn't want to take any allopathic medicine because we know that they will give OCP pills for 3 months, and she didn't want to do that.
So again, in this patient, I suggested that you go for Basti and Pichu, and you can see here that very in a very few months, you can see this is the report of December 23 and this is February 24. Her report was absolutely normal. ओके नथिंग दिस सिस्ट मतलब वो लोग भी 3 महीने की ओसीपी पिल्स देते हैं दैट ऑल्सो कंप्लीट डिजॉल्विंग may be difficult. Here ovaries also became normal in size and absolutely there was no cyst. We have to be one thing I want to say here कि हेमरेजिक सिस्ट वी नो दैट रिकरेंस होते हैं. ओके हेमरेजिक सिस्ट जो है चॉकलेट सिस्ट जो है वो रिकर होते हैं. सो इन ऑल द पेशेंट्स विच एवर आई हैव ट्रीटेड ऑफ हेमरेजिक सिस्ट उनमें सब में जो है एक फैक्टर जो रहता है वो है स्ट्रेस. Okay, there was stress in each and every patient, and stress also induces inflammation. Again I am telling कि फाइब्रॉइड्स एडिनोमायोसिस cyst ये सबका ओरिजिन जो है वो इन्फ्लेमेशन है, शोथ है. ठीक है, तो हर एक पेशेंट में जो है वो स्ट्रेस फैक्टर इवेल्युएट करिए. और स्ट्रेस है तो साथ में आप कुछ भी स्ट्रेस के लिए ब्राह्मी जटा मानसी का कॉम्बिनेशन है ना वो साथ में या फिर मेडिटेशन करवाने के लिए जो भी है. इट इज़ डिफ़िकल्ट, एज वाले पेशेंट्स रहते हैं उनमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ना कि कैसे करें. दे विल नॉट बी यूज टू बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल वी हैव टू टेल देम दैट दिस इज नीडेड टू स्टॉप द रिकरेंस. है ना, रिकरेंस ना हो उसके लिए डाइट जो है वो इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं होना चाहिए. ये सब चीज़ें भी साथ में उनको पथ्या पथ्य में ट्रीटमेंट तो होगी लेकिन साथ साथ में रिकरेंस ना हो उसके लिए. एंड दोज पेशेंट्स हु वांट टू अंडरगो प्रेगनेंसी, जिनको प्रेगनेंसी रखनी है और ये कंडीशन आई है तो उनको बोलना है कि एज सुन एज it is being treated they have to go for pregnancy at the earliest, conception at the earliest. क्योंकि again pregnancy is a condition where the formation of this chocolate cyst or hemorrhagic cyst won't happen. Okay, so these are few cases. कमिंग टू स्थानिक चिकित्सा में अग्निकर्म ऑलरेडी हमने 2 बार देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी और लास्ट टाइम जो कोर्स था कि ये मैंने बताया था कि रामबाण है. हम जो अग्निकर्म दग्धकर्म मेडिकेटेड दग्धकर्म वर्ती से करते हैं वो इरोजन के पेशेंट्स में जो है वो एकदम रामबाण है. तो यू कैन सी हियर there is no need of second sitting at all. Okay, and there is no 0% recurrence. I will say that have been taking follow up of patients since last 15 years, 15 साल से, लेकिन किसी में भी रिकरेंस नहीं हुआ. पेशेंट को कंसेप्शन भी हुआ है, बाद में डिलीवरी भी हो गई है, बट देर वॉज नो रिकरेंस. ओके, ये अभी का ही पेशेंट है, परसों ही किया हमने इसका. छोटा सा ही एरिया था अग्निकर्म का, बट शी वॉज ब्लीडिंग वेरी मच. ये ब्लीडिंग की वजह से देखिए मैं स्वैप कर रही थी और जब तक फोटो निकालते तब तक उसको फिर से ब्लीडिंग वहां पे जमा हो जाता था. तो वी डिड द अग्निकर्म जस्ट बिफोर 2-3 days ओनली, एंड आफ्टर 1 month जब उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा उसके बाद हम उसको हीलिंग के लिए चेक करेंगे. द एरिया ऑफ द इरोजन इज वेरी लेस. यू कैन सी रेस्ट ऑफ द सर्विस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. There is no edema, there is no cervicitis, there is no bulkiness. But this area, this is a patient of infertility also. She came for the treatment of that. So along with other procedures हमने उसका अग्निकर्म भी कर दिया है. So that what happens is कि इसकी वजह से हो सकता है कि स्पर्म का माइग्रेशन ना हो, स्पर्मेटोजुआ का, एंड द पेशेंट में हैव इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है ये पेशेंट में. विरेचन और बस्ती के कोर्स के बाद अभी उसका साइकिल रेगुलर होने लगे हैं. So now we are going to take her for Uttar Basti once this heals. Okay. So here again same. You can see the patients before treatment of erosion. These are after treatment. Okay. So ये भी before treatment है, ये after treatment है. थोड़ा hypertrophy रहेगा, but you can see the clean. Okay. There is the cells are absolutely normal. There is not a single sign of erosion in these patients. Hypertrophy because फॉर्म होते हैं सेल्स, तो उसकी वजह से थोड़ा हाइपरट्रॉफी फॉर फ्यू डेज इट विल बी सी. आफ्टरवर्ड्स द पेशेंट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल. ओके, दिस इज ऑल्सो द पेशेंट, ये फ्लैट टाइप का इरोजन है. दिस वॉज द पेशेंट ट्रीटेड बाय द कलीग ऑफ माइन एट आवर कॉलेज, डॉक्टर स्नेहा.
शी ऑल्सो ट्रीटेड द पेशेंट विथ अदर लोकल थेरेपीज. ओके, पीचू और ये फ्लाइट टाइप का था. यू कैन सी कंप्लीटली इट इज नाउ healed. The erosion is completely healed with the treatment. Similarly, this is the patient of, आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी अपेरेंस अगर आपको दिख रहा है, दिस इज वॉज द पेशेंट ऑफ trichomoniasis. Okay, trichomoniasis. She has treated the same patient, and you can see absolutely a healthy cervix. Okay, can be visualized in the patient after treatment. हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुके हैं आगे ही कि इसमें हम धावन, पीचू जो है या धूपन करना है तो धूपन. ओके, हाँ, ये अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये एरिया, she is a postmenopausal patient, and you can see here this is nothing but anterior vaginal wall cyst. Okay, ये पेशेंट को पेनफुल मिक्चुरेशन, डिफिकल्टी इन द मिक्चुरेशन एंड रेडनेस था, इन्फेक्शन था वजाइना में, एंड दिस cyst was also tender and पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल थी. वो आए थे हमारे पास, तो हमने ये पेशेंट को योनि धावन किया और पीचू रखा था पोटली फॉर्म में हमने, जात्यादी तेल और हरिद्रा का. राइट नाउ हर वजाइना, cervix, everything is very much healthy. Tenderness is absolutely gone, pain is absolutely gone, there is no symptoms of micturition. कोई सिम्टम नहीं है मिक्चुरेशन का, एब्सोल्युटली इज नॉर्मल, बट द सीस्ट इज स्टिल देयर. मैंने चेक किया तो सीस्ट इज स्टिल देयर. रेडनेस चली गई है पूरी, टेंडरनेस नहीं है. सो आई हैव टोल्ड हर, अभी ऑलरेडी धावन हमने 14 डेज के लिए कर दिया है, पीछू भी 14 डेज के लिए, तो मैंने सिर्फ अभी अवगाह के लिए बोला है ये पेशेंट को, और कहा है कि अवगाह लेके देखिए और फिर बाद में विल सी इफ इट रियली इट इज, क्योंकि उनको तो मेडिकल कॉलेज में से तो बोल दिया था कि वी हैव टू गो फॉर एक्सीजन. सो आई सेड लेट अस सी, इफ नॉट देन वी कैन गो, हम भी कर सकते हैं एक्सीजन, बट लेट नॉट डिस्टर्ब इट. उसको देखते हैं और एंड देन इफ इट इज नेसेसरी. सो सच पेशेंट्स, वजाइनल सिस्ट जो है वो काफ़ी बार पोस्टमेनोपॉजल पेशेंट्स में जो है वो मिलती है. दिस इज नॉट बार्थोलिन, है ना, एंटीरियर वजाइनल वॉल सिस्ट जो है इट इज प्रेजेंट. ओके, सो यस, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में भी काफ़ी फ़ायदा होता है ना. सो वी फील सो हैप्पी कि हमने किसी को ये करके दिया. क्रॉनिक इनफर्टिलिटी 7 साल 10 साल 15 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता है. यूपीटी के हमें फोटोग्राफ्स भी डाल के भेजते हैं. सो वी फील सो गुड के वी फील के वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर हेल्पिंग देम, है ना. ये सभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बट कुछ कुछ जो मैंने अभी ये लेक्चर के लिए सब निकाल निकाल के रखे थे, सो वो मैं आपको दिखा रही हूँ. सो यस, डेफिनेटली इवन IVF, बिफोर IVF ऑल्सो, है ना, बिफोर अंडरगोइंग IVF ऑल्सो. सो ये पेशेंट्स आते हैं 42, 43, 47 years of age, they want to go for IVF, but before that they want to do this. ये पूजा बेन का मैंने आपको पहले भी बताया, शी हेल्दी मेल बेबी है ये recently, and she was again a patient of local, this she is a USA patient. She underwent all the panchkarma with स्थानिक चिकित्सा उत्तर बस्ती and then went for IVF, क्योंकि उनमें शी वॉज अराउंड 47 और ओवरी में तो फॉलिकल ही नहीं थे. AMH वॉज वेरी वेरी लो एंड हस्बैंड फैक्टर भी था. सो बट डोनर ओवम डोनर स्पर्म से शी कंसीव्ड, एंड उसको तो एक ही चाहिए था कि मैडम एक भी हो जाए, बट शी डिलीवर्ड विथ ट्विंस. ओके, and both are absolutely normal, the patient is also absolutely normal, so it gives us immense joy and pleasure. Yes, as I said कि ये कुछ रिपोर्ट्स भी आप देखते रहिए ऐसे, है ना, कि हमें और क्या कर सकते हैं हम, या क्या अपडेट्स चल रहे हैं ये आपको पता चलेगा, या आप सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप तो ये देख सकते हैं उदुम्बरादि तेल इन द मैनेजमेंट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू सर्वाइकल इरोजन, है ना. उसमें डायग्नोसिस से लेके मैनेजमेंट फॉलोअप तक आपको पूरे केस रिपोर्ट्स जो है या केस स्टडीज़ है या इवन MD के वर्क है, PhD के वर्क है, वो सभी आपको मिलते हैं. यस, ये भी उदुम्बर सार है, ये उन लोगों ने उसका सार बना के उसको अप्लाई करके
इरोजन में ये ट्रीट किया था. दिस पेपर इज ऑल्सो पब्लिश्ड एंड इट इज अवेलेबल. यू कैन सी दैट केस स्टडीज ऐसे आप भी पब्लिश कर सकते हैं सक्सेसफुल केस, तो दूसरे लोगों को भी उसका ये पता चलेगा, है ना. मैंने पब्लिश किया था अग्निकर्म के लिए हमारे न्यूज़लेटर में, क्योंकि वी पब्लिश अ न्यूज़लेटर फॉर एवरी 6 months in which successful case studies from our college we publish. So we published of अग्निकर्म, एक केस सीरीज मैंने किया उत्तर बस्ती विद IUI. ओके, सो इफ सच थिंग्स आर बीइंग पब्लिश्ड कि तो लोगों को पता चले कि हम क्या और कर सकते हैं. यस, दिस इज ऑल्सो erosion through योनि प्रक्षालन विद त्रिफलादिक्वाथ अपामार्ग क्षार प्रतिसारण, यानी कि उन्होंने क्षार कर्म किया है एंड दे हैव मेड पंचफलकलादि तेल योनि पीचू. तो पीचू जात्यादि नहीं यूज किया है, पंचफलकल जो है उसका तेल का योनि पीचू. दिस माइट बी अ वर्क, PG work, or you can say, and they have published a case study, a case report. I think she is a scholar of Bharti Madam, respected Bharti Madam of Jaipur. ओके, सो गो ऑन सीइंग सच केसेस. इवन इनफर्टिलिटी के मैं आगे हम जब देखेंगे सारे कोर्सेज में हम दिखाएंगे कि सिस्टमेटिक रिव्यू स्टडीज भी पब्लिश हुई है कि भाई PCOD पे उत्तर बस्ती तो कितने आज तक वर्क हुए हैं, उन लोगों ने क्या ऑयल यूज़ किया है, कितने दिन तक किए हैं, कितने साइकिल तक किए हैं. ब्लॉकेज है तो उसमें कुमारी है, अपामर क्षार है, क्षार तेल है, कितने लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है. तो ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी जो है वो मिलता है हमें, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ मिलते हैं. तो इफ़ वी गो ऑन सर्चिंग वी गेट सो मच आइडियाज़. सो अगेन आई एम टेलिंग कि आप ये सब चीज़ें देखते रहिए. हाँ, ये भी एक है, हितल मैडम जो है वो जामनगर में है अभी, ये उनका PG का वर्क था शायद. सो उन्होंने जो है वो निम्बादी योनिवर्ती जो है वो यूज़ की थी. यू कैन सी कर्डी डिस्चार्ज में, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, वाटरी डिस्चार्ज में और प्यूरिलेंट डिस्चार्ज में. सो ऑल काइंड ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन ये योनिवर्ती का है ना. सारे उन्होंने ये निम्बादी वर्ती जो है वो सभी पेशेंट्स में यूज़ करके देखी. सिर्फ एक टिपिकल केस नहीं कि भाई कैंडिडियासिस नहीं, ट्राइकोमोनास नहीं, सभी में लिया और सभी में उनको जो है वो रिजल्ट मिला है. सो निम्बादी योनिवर्ती जो है निम्ब, आप उसमें चूर्ण भी ले सकते हैं या फ्रेश नीम का आप जो है वो स्वरस लेना है, उसमें त्रिफला और टंकण और हरिद्रा इसका पेस्ट जैसा बना के जो है वो थोड़ा सा घी ऐड करके बाइंड करके योनिवर्ती बना सकते हैं. अब योनिवर्ती जैसे फलवर्ती बनाते हैं उस आकार में भी आप बना सकते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण में, या फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसको गॉस पीस में वो कल को रख के उसको टाई करके वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं. सो शी प्रिपेयर्ड घनवटी बना के उन्होंने बनाया था. प्रीवियस मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था उसका स्टडी. ये इन्होंने वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस इन प्रेगनेंसी, उपप्लुता योनि व्यापद. उपप्लुता योनि व्यापद में जो चरक ने बताया है धातक्यादि तेल का पीचू बताया है ना. तो पीचू की जगह पे इन्होंने क्या किया, वो धातक्यादि जो है उसी की उन्होंने वर्ती बनाई, है ना, और वो वर्ती जो है वो अप्लाई की. So you can see here clear cut pictures of candidiasis in pregnancy and she is treated with this tachycardia. फिर से मैं बोल रही हूँ ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई भी वर्ती ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए खुद बनानी पड़ती है. ये PG PhD के लिए लोग बनाते हैं, बाद में वो मार्केट में बाहर आती नहीं है. तो ये आइडियाज़ लेके हमें खुद जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी and then we have to use it in our patient. इवन अग्निकर्म का जो मैंने बताया दग्ध कर्मवर्ती वो भी मार्केट में मिलती नहीं है, वो हमें खुद बनानी पड़ती है यूज़ के लिए. ये ड्रॉबैक है थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्लॉट्रीमाजोल की देखिए आप, सपोजिटरीज भी, टैबलेट्स भी मिलेगी, जेल भी मिलेगा, पाउडर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अकॉर्डिंग टू. लेकिन हमें अगर करना है देन वी हैव टू वर्क फॉर दैट. हमें रेडीमेड जो है वो कुछ भी नहीं मिलता है, we have to prepare and we have to use. तो दिस इज द थिंग. यस, ये मैं वर्ती बता रही थी. तो ये वर्ती इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं नींब से. उसको आप बेस जो है वो नींब पत्र का स्वरस ले लीजिए, है ना, और उसके साथ में आप हरिद्रा, टंकण, त्रिफला, इसके निम्बादी योनिवर्ती के इंग्रेडिएंट्स है.
उसको पेस्ट जैसा बना के फिर ये वर्कली फॉर्म में ऐसे बना के ड्राई करके रखिए। इसको ड्राई करके आप मतलब थोड़ी वर्ती सपोज एक पेशेंट के लिए बनाई है 7 दिन की, तो वो आप शेड में ड्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक है, देखिए आप गॉस पीस में भी टाई करके, ये इजी होगा निकालने के लिए, डालने के लिए, पेशेंट को ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगा। बाइंड करते वक्त एक चीज़ याद रखिए, घृत का यूज़ करिए जब अप्लाई भी कर रहे हैं, तो घृत और या फिर ऑयल, जात्यादी ऑयल या घृत, शतदौत घृत, कोई भी घृत ले लीजिए, उसके साथ उसको लेपन करके फिर अंदर लगाइए। इसको इस फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं या फिर गोल जैसे हम पोटली बनाते थे ना, वो पोटली फॉर्म में भी इसकी वर्ती बना सकते हैं। दोनों टाइप से वर्ती बना के इसका यूज कर सकते हैं। बट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर इट, ओके, एंड देन यू हैव टू यूटिलाइज इट। ये एक और है केस जिनमें उन्होंने वर्ती और साथ में तेल का पीचू जो है वो यूज़ किया था, एंड दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड। सो उन्होंने तो साथ में ये विजुअल इंस्पेक्शन विद ल्यूगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन है ना, तो अलग अलग मेथड से कि भाई ये मेलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं है ना, वो देख के जो है वो पब्लिश किया था। ये आई थिंक आयुष धारा में पब्लिश्ड है ये आर्टिकल। सो यू कैन अगेन गो थ्रू इट कि सर्वाइकल सेल पैथोलॉजी है, प्रिमिटिव सर्वाइकल सेल पैथोलॉजी में जो है वो यूजिंग द वर्ती एज वेल एज द पीचू है ना, वर्ती और बाद में पीचू, तो दोनों चीज़ें उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा 9 से जो कोर्स शुरू होने वाला है, अभी मैंने यहाँ पे आपको केस रिव्यूज दिए हैं। हम क्या करने वाले हैं वो सिलेबस में कि हर एक जो स्थानिक कर्म है उसकी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पूरी ठीक से, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पूरी प्रोसीजर के साथ में उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, माइनर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मेजर। ऐसा नहीं है कि ये सब प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हो सकते हैं, होते हैं, और उसका मैनेजमेंट क्या करना, प्रिकॉशंस क्या लेने, है ना। केस स्टडीज जैसे आज आज हमने देखी है, वैसे कुछ केस स्टडीज देखेंगे, केस डिस्कशंस आपके भी कुछ है तो वो करेंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है। आगे की उसमें उत्तर बस्ती नहीं होता, उत्तर बस्ती हम डिटेल में विद प्रोसीजर्स एंड वीडियोस, जितने वीडियोस है उसकी वीडियोस भी हम देखेंगे, है ना। और साथ में उत्तर बस्ती का मेनली कॉम्प्लिकेशंस कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको, कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट, ओके, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उत्तर बस्ती के और उसका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बिफोर, पूर्व कर्म में भी, प्रधान में भी और पश्चात कर्म में भी, एंड इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन से लेकर रिमोट कॉम्प्लिकेशन तक, माइनर कॉम्प्लिकेशन से लेकर मेजर कॉम्प्लिकेशन तक। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड, खास करके प्रोसीजर डिटेल में, हाउ टू परफॉर्म विद द वीडियोस, वी आर ऑल गोइंग टू कवर दिस इन दैट कोर्स, ओके। So thank you so much. If there are any doubts or queries, mm, just a second. Questions है, क्वांटिटी ऑफ ईच ऑयल मिक्सिंग इन, नहीं सेम क्वांटिटी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उत्तर बस्ती की बात कर रहे हैं तो 1 ml या मैक्सिमम 2 ml जितना आप अपामार्क क्षार तेल ले लीजिए, और शतपुष्पा 3 ml या 2 ml, मतलब आप जितना 5 ml लेने वाले हैं तो ज़्यादा शतपुष्पा 3 ml लेना है, और 2। अगर आप बस्ती के लिए ले रहे हैं, जैसे अगर मात्रा बस्ती मुझे देनी है, तो मात्रा बस्ती में हम मैक्सिमम 60 ml रखते हैं, तो 60 ml में से 50 ml शतपुष्पा होगा या सहचर होगा, और 10 ml जो है वो अपामार्क क्षार तेल होगा। सो डिपेंड्स, है ना, उस तरह से हमें लेना है। अग्लूटिनेशन, हाँ यस कर सकते हैं, सीमेंट वॉश से ट्रीट कर सकते हैं। अगर अगर देखिए, मैंने कहा हम सीमेंट वॉश किस पेशेंट्स में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रिपोर्ट जो है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है स्पर्म एनालिसिस का। ठीक है। जिन पेशेंट्स में जो है वो नहीं है सीमेंट के रिपोर्ट्स नॉर्मल, उसमें जो है वो आप कर सकते हो। अदरवाइज इट शुड बी डन, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो योर ट्रीटमेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल, बट यू कैन गो। शोधन कब स्टार्ट करना है मैम, आई मीन अप्रोक्सीमेटली कितने दिन के, बिकॉज पेशेंट जब आते हैं, मोर देन 50% पेशेंट आते हैं, तो वो सब साम अवस्था में ही रहते हैं और उनका बल नहीं रहता शोधन के लिए। ऑफ कोर्स पेशेंट सीधा
मानेंगे भी नहीं सीधा, अब अगर आप शोधन के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें उनको टाइम समझाना है कि यू आर ऑलरेडी 33 ईयर्स, 34 ईयर्स, टाइम लिमिट है। और जब भी कोई पेशेंट को हमें शोधन के लिए लेना है तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद दीपन पाचन। और मैं देती हूँ जनरली शंखवटी और लशुन आदिवटी, क्योंकि लशुन जो है वो स्त्री में, अगर आप अगेन काश्यप संहिता का लशुन कल्पाध्याय पढ़े तो स्त्री का जो है उसको मेंटेन करना। सॉरी मेरा वीडियो नहीं शुरू हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन आई होप यू कैन लिसन। तो शंखवटी और लशुनादि में स्टार्ट करती हूँ। तो वो चालू करके जब वो कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मेडिकेशंस लेके आए होते हैं पेशेंट्स, तो उनमें जो है वो मुश्किल ही है शुरुआत में डायरेक्ट। बट वी हैव इवन आप उद्वर्तन करवा सकते हो। मैं ज़्यादातर ओबेस पेशेंट है तो उद्वर्तन भी पहले कर लेती हूँ दीपन पाचन के साथ में। उसके बाद में आप दूसरे शोधन कर्म शुरू कर सकते हैं। आपका एकदम वैलिड क्वेश्चन है कि ये होता ही है ऐसे पेशेंट्स में, और सामावस्था में आपका शोधन ठीक से नहीं होगा। शतपुष्पा oil is, as I have mentioned, the फलश्रुति अपि वंध्या च षण्डी च सूयते शतपुष्पया। Shatpushpa is Anathum sova. It is rich in phytoestrogens. It has been known to balance the estrogens. सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, वो जो बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा। एंड शतपुष्पा शतावरी रसायन जो है उसकी तरफ से भी काम करता है इन द पेशेंट्स विद लो AMH, विद प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। बहुत ज़्यादा फलश्रुति है उसकी, शतपुष्पा की। एंड अगेन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट। उसको देख के आप किसी फार्मासिस्ट के से बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज में उन्होंने बना के दिया है। नस्य MC के बाद कब स्टार्ट करना है? इमीडिएटली आफ्टर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हमेशा पेशेंट पूछेंगे कितने दिन के बाद, कितने दिन के बाद नहीं, आप भी समझ लीजिए कितने दिन के बाद नहीं, स्टॉप होने के बाद। बिल्कुल भी स्टॉप होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन जो है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, पेशेंट अगर बोले मुझे 7 दिन तक आता है तो 7 दिन तक नस्य नहीं करना है। 8वें दिन से, पेशेंट बोले 3 ही दिन आता है तो चौथे दिन से। तो ये मेन है। उत्तर बस्ती में 5 ml आप अगर पेशेंट नली पैरस है, एक भी डिलीवरी प्रेगनेंसी नहीं हुई है और आपको लगता है कि 5 ml पूरा डाल दिया और पूरा रिगर्जिटेट हो गया तो उसका कोई प्रत्यागम पूरा का पूरा हो गया तो कोई मतलब नहीं, होता ही है लेकिन थोड़ा बहुत। तो 3 ml से शुरू करिए, 3 ml, 4 ml, देन 5 ml। मैक्सिमम मैंने देखा है 8 ml तक भी पुश हो सकता है, लेकिन नॉट फॉर ऑल, है ना। यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। उत्तर बस्ती मैंने मिक्स करके दिया था। ये बला का यूज किया था वात के लिए और साथ में अपामार्क शार्टेल। उसमें मैंने पेशेंट में शतपुष्पा या ऐसा कुछ यूज नहीं किया था। सर्चर मुझे उस वक्त नहीं मिला, इसलिए बला ऑयल और साथ में अपामार्क, क्योंकि अपामार्क हम प्लेन नहीं यूज कर सकते, इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए, ये मिक्स करने के लिए हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं। मैंने बताया अभी ही उत्तर बस्ती में किस फार्मेसी का अगेन नहीं अवेलेबल है, किसी भी फार्मेसी का अवेलेबल नहीं है, वो बनवाना पड़ेगा। बेस्ट मेडिसिन टू ओव्यूलेशन इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज पेशेंट इन हैविंग लो एस्ट्रोजन वैल्यूज। लो एस्ट्रोजन में हमेशा शतपुष्पा, शतावरी, फलग्रुत, ये सब का आप यूज करिए। इवन आप बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं तो उसमें भी शतावरी ग्रुत, फलग्रुत, इस सब का यूज करिए। उत्तर बस्ती में भी शतावरी या फलग्रुत, उसमें फलग्रुत बेस्ट है, फलग्रुत का यूज करिए, है ना। तो वो ये पेशेंट्स में जो है लो एस्ट्रोजन वाले में बैलेंस करता है। शतावरी में भी फाइटोएस्ट्रोजेंस है, शतपुष्पा शतावरी का सुबह घी के साथ वो भी आप शुरू कर सकते हैं। पॉलिप रिकरेंस में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, उसमें भी आप अपामार्क शार्टेल का पीचू रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बार बार जो है वो नहीं होगा। और अगर मेद दुष्टि है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट आप साथ में करिए, है ना। पॉलिप जनरली मांस और मेद की दुष्टि से होता है, तो अगर पेशेंट में वो है, जनरली मेरा, जैसे मैं बोलती हूँ, मेरा ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा ये पेशेंट्स में लशुन आदि तो होता है, साथ में कांचनार भी होता है, ठीक है। लोकल अगर आपको ट्रीट करना है तो ये हाउ अग्निकर्म इज डन इन निरोजन, ये आप, मुझे लगता है आप आगे वाला जो फ्री लेक्चर है यूट्यूब पे अवेलेबल है तो वो आप देख लीजिए। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं हम जो करते हैं वो दग्ध कर्म वर्ती से है। आई होप कि प्रीवियस यूट्यूब वाला फ्री लेक्चर आपको दिखा होगा।
पूरा उसमें हमने प्रोटोकॉल बताया हुआ है कैसे करना है वीडियो के साथ में। तो आई विल सजेस्ट प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। और ऑर्गेनाइजर्स को मैं बोलूँगी कि वो वाली लिंक फिर से शेयर कर दे आप लोगों के साथ में, तो आप देख सकते हैं। आफ्टर अग्निकर्मा फिर से मैं बोल रही हूँ वो वाला वीडियो फिर से देख लेना। त्रिफला गूगल, पुष्यानुक, चंद्रप्रभा थोड़े दिनों तक, 1 महीने तक चालू रखने की ज़रूरत होती है, बाद में ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्चार्ज ज़्यादा होता है हीलिंग के लिए। और जात्यादी ऑयल का पीचू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक हर रोज़ एक बार रखना है। रिकेनालाइज फेलोपियन ट्यूब, हाँ बताया ना मैंने, केस दिखा है ना। और ये एक मेरे पास था, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में देखा है कि ट्यूब्स ओपन हो जाती है। एक पेशेंट था कि उसको पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस बायलेटरल ट्यूबर ब्लॉकेज थे, एंड दैट टू कॉर्नुअल। कॉर्नुअल होते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं, कॉर्नुअल है चलो इजीली ओपन हो जाए, लेकिन शी वॉज पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस। उसने एकेटी लिया था, एकेटी लेने के बाद उसको ये हुआ था। और इसको, ये पेशेंट को जो है वो एडेशंस भी थे इंट्रायूट्राइन बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस। एकेटी लेके आई थी पेशेंट 9 मंथ्स की, उसके बाद में तो मैंने किया चलो क्षार तेल का मिक्स करके, और इनफर्टिलिटी है इसलिए मैंने शतपुष्पा भी यूज़ किया। तो किया, ट्यूब ओपन भी हो गई, बट शी कुडंट कंसीव नेचुरली। तो उसमें ऐसा पता चला कि एक ये इसके जो पेशेंट्स होते हैं इनफर्टिलिटी के बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस, उनमें जो है वो सीलिया कंप्लीटली डैमेज हो जाती है ना। एकेटी लेने की भी बात थी, अगर ओपन भी है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, तो आप देख के फिर ऐसे पेशेंट्स में कौन सा पेशेंट है देखिए। ये क्या डाला, विच ऑयल इन एडिमायोसिस, ये हमने डिस्कस किया अभी। लो एम एच यस कर सकते हैं, 0.01 वाले भी नेचुरली कंसीव हुए हैं, 0.01, 0.02। एक बात याद रखिए, लो एम एच का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट कंसीव नहीं हो सकती। लो एम एच इंडिकेट्स की फॉलिकल्स कम है। आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग फॉलिकल्स जो है रिजर्व में, उनको हमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, उनको हमें प्रॉपर ओवुलेशन हो ये देखना है। तो फॉर दैट फलग्रुत इज एक्सलेंट, शतपुष्पा, इवन फल कल्याण घृत, कल्याण घृत, ये सभी जो है वो एक्सलेंट ड्रग ऑफ चॉइस है। नस्य भी आप कर सकते हैं, बस्ती, उत्तर बस्ती कर सकते हैं, दे आर ट्रीटेड, लो एम एच के पेशेंट्स ट्रीट होते हैं। निम्बादिवर्ती नेक्स्ट मेच्योरेशन, जैसा वर्ती का प्रोटोकॉल है, आपने लगाया, पेशेंट मेच्योरेशन करके आई, वर्ती लगाया, और पेशेंट को जब नेक्स्ट मेच्योरेशन के लिए जाना है 2 घंटे के बाद, 1 डेढ़ घंटे के बाद, तो उस वक्त रिमूव करके डिस्कार्ड कर देनी है। ये सब आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए फी वगैरह। अग्निकर्म प्लीज ऑर्गेनाइजर्स आप लिंक आप इन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए इरोजन का। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स अगेन, कांचनार, वरुणादि, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी, look for the size of the fibroid, लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। सब म्यूकस है तो थोड़ा मुश्किल रहता है, उसमें आप उत्तर बस्ती भी ट्राई करिए। सब सेरस या इंट्राम्यूरल है तो बस्ती से हो सकता है। एक विरेचन दे दीजिए बस्ती देने से पहले, और ये ओरली ये मेडिसिन जो है वो चालू रखनी है। शतपुष्पा तेल का रेफरेंस में डाल देती हूँ, काश्यप संहिता, कल्पस्थान, शतपुष्पा, शतावरी, कल्प अध्याय। मैं नहीं बनाती हूँ, मैं यहाँ पे कॉलेज में काम करती हूँ। उस कॉलेज में जो है फार्मेसी है, और वो फार्मेसी हमें मुझे बना के देती है। हम लोग 25-50 लीटर एक साथ बना देते हैं, तो वो काफ़ी चलता है, सभी में हम यूज़ करते हैं। और तेल है तो उसका कुछ ऐसा सच एक्सपायरी नहीं है। ठीक है। हाउ टू अप्रोच पीसीओडी केस, फैक्टर्स टू एसेस। पीसीओडी का हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आई थिंक जून में शायद हम करेंगे पीसीओडी का। पीसीओडी के केस को अप्रोच करना इतना इजी नहीं, मैं अभी ऐसे 5 मिनट में 2 मिनट में बता भी नहीं सकती हूँ। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पीसीओडी। ओके, पीसीओडी जो आपको ये बताते हैं, उसके अलावा भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इन्फ्लेमेटरी, पोस्ट पिल, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, हाइपर इंसुलिनोमिया, टेस्टेस्टेरॉन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, बहुत अलग अलग केसेस होते हैं। So we have to look into it, and for each and every patient the treatment will change.
एक ही ट्रीटमेंट आप सभी पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते इन पीसीओडी। सो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, है ना। फैक्टर्स टू एसेस मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, एंड्रोजेनिज्म है, इंसुलिन है, ओबेज है, लीन है, ये सब चीज़ें देख के आपको पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा। वजनलेस्टेटोमी के बाद प्रोलैप्स आफ्टर सर्जरी 58, यस, मूषक तेल का या उदुम्बर तेल का पोटली रखिए, होगा। साउंड नहीं आ रहा क्या? नस्य वर्धमान मात्रा में 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए देना चाहिए आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। शतपुष्पा तेल मैंने रेफरेंस डाल दिया, प्लीज देखिए आप वो एक बार पढ़िए, कल्पस्थान, शतपुष्पा, शतावरी, कल्पाध्याय। ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रोइड्स अभी डिस्कस हो गया। हाँ, 1:4:16, हाँ, टेल प्रपोर्शन, हाँ। भाई मैं बता देती हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में, फार्मासिस्ट में। जो हमारे फार्मेसी के हैं इंचार्ज, वो हमें बना के देते हैं। आई विल सजेस्ट यू टेक वन ओपिनियन ऑफ फार्मेसी पीपल, रसशास्त्र पीपल, एंड देन बना के लीजिए। मैं इंदौर में भी प्रैक्टिस करती थी, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता था, तो यहाँ पे हम गुजरात से मंगवाते थे बनवा के, है ना। 5-10 लीटर, ऐसे 15 लीटर तब तो मंगवा लेते थे। अब तो हम बल्क में यहाँ पे फार्मेसी में हमारे कॉलेज की, इसलिए बनवा लेते हैं। 7 डेज, 7 डेज, नस्य फॉर 7 डेज। लक्षणादिवटी 2 BD, पेशेंट को जब तक आपको साम निराम लक्षण ना मिले तब तक दीजिए, ठीक है। 21-year-old female patient, secondary amenorrhea. Last 3 minutes I will take questions, हाँ, then we repeat हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। She had only one menstrual cycle at the age of 14, which was scanty, and no menstrual cycle, and estrogen is okay. माल एब्सॉर्प्शन, ये कार्श्य वैवर्ण जननी भ्रूषम, ये अरजस का योनि व्यापद है, तो उसमें आपको भ्रूहण करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप तीक्ष्ण उष्ण चिकित्सा देंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगी। इसमें आपको भ्रूहण चिकित्सा करनी है, उसमें भी शतावरी इज योर ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। तो ये बेस्ट है, वो आप उसको दीजिए। उसका जैसे जैसे बढ़ेगा ये उसमें, और माल एब्सॉर्प्शन है तो वो टेक हेल्प ऑफ काय चिकित्सा पीपल ऑल्सो, है ना। उसके साथ में रह के, दूसरा कुछ उसको सिंड्रोम तो नहीं है, दूसरे कुछ एसोसिएटेड, वो चेक करिए एक बार सारा उसका रिपोर्ट्स, हार्मोनल एज वेल एज यूट्रस एंड एवरीथिंग। यूट्रस तो स्मॉल नहीं है, हाइपोप्लास्टिक नहीं है, ओस्टियोपोरोसिस भी है, बाप रे बहुत सारा प्रॉब्लम है उसको। प्लीज़ आप फिजिशियन के साथ मिलके इसका केस जो है ना डिस्कस करिए। आई थिंक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी इतना ये नहीं है, आई विल से कि प्रायोरिटी नहीं है, बट दूसरे सारे इतनी यंग एज में ओस्टोपोरोसिस, मतलब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो मेनली उसको फिजिशियन के पास, हमारा से ज़्यादा उसको उसकी ज़रूरत है ना। वो देखिए, फाइब्रोइड की हो चुकी, हाई एमएच तो पीसीओडी है ना। पीसीओडी की ट्रीटमेंट करनी है, हाई एमएच वाले सारे। मैंने एक केस बताया शुरू में ही, हेमरेजिक सिस्ट, पीआईडी था साथ में, पाउच ऑफ डगलास में फ्लूइड है, इसका मतलब कि पीआईडी है। विरेचन दीजिए, सबसे पहले तो ये पेशेंट को विरेचन दे दीजिए, सभी शोथ कम हो जाएगा, सारा लिक्विड निकल जाएगा, है ना। तो वो करिए, उसके बाद में आप उसको उस हिसाब से हेमरेजिक सिस्ट के लिए बस्ती दे दीजिए, ओरली कांचनार, अभिपत्तिकर हमेशा याद रखिए ऐड करने के लिए, शिवशेखर अभिपत्तिकर, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है। भले आप आरोग्यवर्धिनी देते हो, कांचनार देते हो, लेकिन पित्त के लिए भी कुछ ना कुछ देना है। ऑटोक्लेव ऑयल बिफोर, हाँ करना ही है। नो साउंड, आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? आई थिंक आ रही होगी आवाज। मेनोपॉज अकर इन द एज ऑफ 42, पेशेंट वाज अंडर ट्रीटमेंट, हाँ हो सकती है ना। आजकल तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर के बहुत पेशेंट मिलते हैं। अभी परसों मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 25 years ऑफ एज, है ना। वो गांव, वो बिहार के थे वो, ठीक है, बिहार के थे, और यहाँ पे शादी करके आए हैं, लेकिन शादी के बाद बोले 1 साल के लिए बिहार चले गए और 1 साल से पीरियड्स नहीं आया है। तो मैंने कहा 1 साल से नहीं आया तो वी हैव टू गो फॉर फ्यू रिपोर्ट्स। मैंने सोनोग्राफी कराई और एक एफएसएच का रिपोर्ट कराया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका रिपोर्ट आया 80, और सोनोग्राफी में आया यूट्रस इज एट्रोफिड। 26 years ऑफ एज, है ना। तो आजकल तो मिलते ही हैं।
एडिनोमायोसिस में अपामाक क्षार और सहचर तेल की उत्तरबस्ती उष्ण, अरे हम ml कितना डालते हैं, 5 ml, उसमें भी वापस कितना आएगा, प्रत्यागमन हो जाएगा। अगर आप बस्ती की बात कर रहे हैं तो नहीं, हमें देखिए ये पेशेंट्स में एडिनोमायोसिस में हमें विगरस ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। शतपुष्पा जो है वो हम ओवरी के लिए यूज करते हैं। शतपुष्पा का जो बोलते हैं ना कि टारगेट ऑर्गन जो है, जहाँ पे हमें उसका काम चाहिए शतपुष्पा का, वो ओवरी है। एडिनोमायोसिस पे हमें ओवरी पे काम नहीं चाहिए, है ना। एडिनोमायोसिस पे हमें चाहिए कि जो उसका मायोमेट्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसको हमें लेखन भी करना है और विगरस ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए कर रहे हैं, अपोजिट होती है ट्रीटमेंट, लेकिन वो देना चाहिए और उससे काफी फायदा होता है पेशेंट को, ठीक है। शतपुष्पा का अधिकार एडिनोमायोसिस में नहीं दे सकते मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपने किए हैं तो मैं भी ट्राई करके देखूंगी, बट व्हाट आई थिंक इज दैट इट इज इंडिकेटेड फॉर द ovarian function and endometrial function, not for the myometrium. ऑटोक्लेव फलद्रुत फॉर उत्तर बस्ती, हमारे पास तो ऑटोक्लेव का मशीन है, तो हम उसमें टाइट पैक वो इसमें डब्बे में रख देते हैं लास्ट साइकिल में। और आपके पास नहीं है, सपोज सबके लिए बोल रही हूँ, आपके पास अगर ऑटोक्लेव मशीन नहीं है तो क्या करना है, एक बार आपका घी या तेल जितना भी आपके पास है उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले आइए, गैस पे एक बार बॉईल कर दीजिए। बॉईल होने के बाद उसको फिल्टर करके उसको प्रिजर्व कर दीजिए, ठीक है। तो वो हो गया। अगर आप ऑटोक्लेव नहीं, ऑटोक्लेव करना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से करिए। फाइब्रोइड फंडस ऑफ यूट्रस नहीं, साइज देखो, साइज देखो, फाइब्रोइड का 2 या 3 सेंटीमीटर तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से ऊपर जाता है तो कर सकता है। और दूसरा सब म्यूकस वेराइटी का है तो कर सकता है, इंट्राम्यूरल सबसेरस नहीं करेगा। मैं अभी स्टॉप करती हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट जो करेंगे एक दो ले लेती हूँ। मैं मुझे पता होता तो मैं इतना पढ़ाती नहीं ज़्यादा, हम सीधा इसी पे क्वेश्चन ही ले लेते हैं। कहाँ गया, गिवन फॉर फॉलिकल स्टिमुलेट हाउ मेनी, पुष्प धन्व दीजिए, पुष्प धन्व रस फर्स्ट डे टू 14th डे, बहुत अच्छा रिजल्ट है पुष्प धन्व रस का। आगे किसी ने रसपाचक भी बताया था। आ रही मैच्यूरेशन इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब क्या, इंटरमिटेंट मैच्यूरेशन, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। स्मॉल साइज पीरियड्स आफ्टर हॉर्मोन्स ओनली, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस अगर है तो 15-15 दिन तक उसको फलग्रुत की या शतावरी ग्रुत की मात्रा बस्ती दीजिए, 50-50 ml की आप कंटिन्यू रखिए। 15 दिन दिया, फिर 2 महीने बाद फिर से 15 दिन दिया। ओरली भी शतावरी शतपुष्पा का घी के साथ रसायन चालू कर दीजिए। पीसीओएस ऑफ कोर्स शतपुष्पा तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, बहुत अच्छा है रिजल्ट उसका, बहुत अच्छा है। फॉलिकल्स रप्चर, फॉलिकल रप्चर करने के लिए बोल रहे हैं आप तो चित्रकादी, अजमोदादी वटी, अजमोदादी चूर्ण, ये अच्छा है रप्चर करने के लिए। फाइब्रोइड की हो चुकी बात, एंडोमेट्रियम के लिए, एंडोमेट्रियम के लिए फलग्रुत की उत्तर बस्ती दीजिए थिकनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। बार बार मिक्सचुरिश होना, अब उसको आप प्रोलेप्स है, वजाइनल प्रोलेप्स है, सिस्टोसिल है, रेक्टोसिल है, उसको स्टेनोसिस है ना, या फिर उसको रिटेन्ड मिक्सचुरेशन रहता है, सिस्टाइटिस है क्रॉनिक, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तब हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है, उसको इवेल्युएट करिए। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। Next, thank you so much all. I will stop here now because questions will go on. Continue. We'll keep a session of for only question answer. Okay, we'll discuss cases. है ना, एक रखेंगे ऐसा सेशन, only we will discuss. मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, we'll just take question and answers. Okay. Thank you so much.